Assalamu alaikum and good evening, everyone. We're live from Faisalabad's Facebook page. This is the fourth installment in the series of live sessions we have arranged to address the queries of the prospective students. These are indeed unprecedented times for us, and it has been difficult for all of us. As much as we are looking forward to the end of this pandemic soon, we also can't let it stop our lives. Keeping this in mind, we will also be talking about education in the current situation and online classes as well. I am Mughis Ismail. I am from the Department of Computer Science. With me are the Faculty of Management Science Department. We have Mr. Zishan Haider, he is the head of the department, along with Dr. Saif Makbool, an assistant professor, and Mr. Agha Murid, who is a lecturer at the Department of Management Science. I would now request Mr. Zishan to talk about the FAST School of Management, its history, and the programs it has to offer. Over to you, sir. Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much, Mughis, for giving me this opportunity to talk to the prospective students. The Faisalabad campus was established in 2012, and since then, FAST School of Management is offering different degree programs that include BS Accounting and Finance, BBA, and MBA program. And Alhamdulillah, our 4 batches are graduating and they are well received by the industry. And right now, we're only offering BBA and MBA program. And our BS Accounting and Finance is in a process of replacement with BS Business Analytics due to the increased demand in the industry. And to facilitate the learning process, we have state-of-the-art infrastructure, which is available for the students, and that include modern classrooms and state-of-the-art and fully equipped computer labs, cafeteria, auditorium, and that is and a state-of-the-art library, which include more than 10,000 books and all that. And let me briefly explain you about the faculty, which is definitely the most important element of any business school. And fortunately, we are very lucky that we have a great mix of PhD researchers and practitioners at the same time. And we have PhD faculty members who are coming from different foreign institutes. And then we have practitioners who are coming from the corporate sector of Pakistan. And Alhamdulillah, they both collectively are putting their efforts to train the students for the upcoming challenges of the modern world. Thank you, Mughis. Mughis, your mic is not working. Sorry. सर हम MBA और BBA ऑफर कर रहे हैं मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के अंदर. तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर हम जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है जो कि हमारा BBA है उसके लिए हम टेस्ट ऑफर नहीं कर देना पड़ेगा कैंडिडेट्स को. तो क्या MBA के लिए टेस्ट देना पड़ेगा? जी, BBA के लिए हम टेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि BBA में अंडर ग्रेड पे रिलेटिवली यंगर स्टूडेंट्स होते हैं और SOPs को फॉलो करना और उनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. और MBA में हमारे पास चूँकि मैच्योर लोग आते हैं और MBA में एक सर्टन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है जिसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ वाई फॉर दिस ईयर करंटली वी आर ओनली टेकिंग टेस्ट फॉर द MBA, और वो हम हमेशा से जिस तरह ले रहे होते हैं उसी तरीके कार पे हम लेंगे इंशाल्लाह. Obviously, we'll be following the SOPs given by the government as well for the safety of the candidates. Exactly, inshallah. Okay, we have a question by Mustaba Wan. He is asking that have you started MS and /MPhil here? Actually, the degree which is being offered by the FAST School of Management is like you have an option to go for the MS as well. Like there is an option of 6 credit hour research and a 3 credit hour project. If some student is opting for 6 credit hour research, that degree is equivalent to the MPhil. I mean, he can get admission anywhere in the world for the PhD, and that will be equivalent to the MS or MPhil degree. But सिर्फ चीज़ ये है कि आपको अपने दूसरे सेमेस्टर के बाद 6 क्रेडिट आवर की रिसर्च लेनी पड़ेगी. और वो लोग जो कॉर्पोरेट में जाना प्रेफर करते हैं एंड दे डोंट वांट टू गो फॉर द PhD, instead of choosing research, they go for the 3 credit hour project, जिसमें उनको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कराया जाता है. दैट कैन बी अ केस स्टडी, दैट कैन बी अ लाइक आपके जो है वो कंसल्टेंसी रिपोर्ट, दैट कैन बी अ बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट एज वेल. तो ये ऑप्शन हमेशा से रहा है फास्ट के MBA में कि दैट इज इक्वल टू MPhil. Okay, thank you, sir. I hope Mustafa, your question has been answered. सर MBA में कुछ और क्वेश्चन है क्योंकि MBA एक ऐसी डिग्री है जिसके अंदर कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं. सम केसेस दे आर इंजीनियर्स एंड दे डिसाइड कि अब उन्होंने फील्ड स्विच करनी है या फिर उन्होंने एक डिफरेंट और एक टेस्ट लेना है मैनेजमेंट पढ़ने का. तो MBA के लिए कौन से लोग एलिजिबल होते हैं?
अभी फास्ट में जो हम एमबीए करा रहे हैं इसमें बीबीए के लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं, बट वी आर टेकिंग एप्लीकेशन फॉर द एमबीए फ्रॉम द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल। तो इसमें ये होता है कि इंजीनियरिंग वाला जो होते हैं उनका फिर थोड़ा क्राइटेरिया ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको एक आधा सेमेस्टर पहले प्रिलिमिनरी सेमेस्टर जो होता है वो उन्हें उन कोर्सेज का पढ़ना पड़ता है, जिस तरह फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और मैनेजमेंट के बेसिक कोर्सेज का एक सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, तो उनकी डिग्री 2 साल में पूरी होती है, जबकि जो लोग बीबीए करके आते हैं उनकी डिग्री 1.5 साल में पूरी हो जाती है। तो ये फ़र्क है, हम दोनों ऑफर कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह हम देखते हैं एडमिशन्स के बाद डिसाइड करते हैं कि किस प्रोग्राम को हम किस तरह क्लासेस स्टार्ट करेंगे, या इकट्ठे पढ़ेंगे या अलग-अलग पढ़ेंगे। अगेन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशंस। ओके सर, एंड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग बीबीए के लिए हर बैकग्राउंड के लोग एलिजिबल होते हैं। अगर आपने मेडिकल भी पढ़ा हुआ है तो वो अभी एलिजिबल हैं बीबीए करने के लिए, या फिर वो अभी भी नहीं है? जी वो एलिजिबल है। मेडिकल वाले बीबीए के लिए एलिजिबल होते हैं। इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द सोशल साइंस बैकग्राउंड एज वेल, यू आर एलिजिबल फॉर द बीबीए। ओके सर, थैंक यू। इर्तजा जफर का एक क्वेश्चन है कि आर देयर एनी न्यूज़ दैट द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू ओपन? डॉक्टर सैफ, अगर आप इस पे कमेंट कर सकें। यूनिवर्सिटीज एज पर HEC जो करंट ISOP है उसके अकॉर्डिंगली तो 15 जुलाई से यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं। अगर इसमें फर्दर कुछ डिले आता है तो हम वेट करेंगे, क्लासेस कुछ डिले हो सकती हैं। तो जब तक यूनिवर्सिटीज होपफुली अगस्त या सितंबर में ओपन हो जाएंगी तो उस वक्त हमारी जो क्लासेस वहाँ पे कैंपस में होंगी। ओके सर, थैंक यू। एज डॉक्टर सैफ सेड कि अभी यूनिवर्सिटीज़ फिलहाल के लिए क्लोज हैं। जो हमारा करंट सेमेस्टर है दैट इज़ स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट ऑन द 31st of August। तो टिल देन वी आर होपिंग कि सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आएंगे, HEC की तरफ से डायरेक्टर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि हमने यूनिवर्सिटी ओपन करनी है। और ऑब्वियसली वो SOP साथ फॉलो किए जाएंगे। स्टूडेंट्स की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी पे है। एजुकेशन जो उनसे है वो ऑनलाइन भी हम क्लासेस शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल टुगेदर सेपरेट थिंग। और हमारा अगला क्वेश्चन भी उसी के बारे में है। द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शेख उस्मान आमिर। ही इज़ आस्किंग सर, अगर सितंबर तक कैंपस ना खुला तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी? सजेशन जी अच्छा, जो हमारा फ्रेश बैच आ रहा है, फ्रेशमैन जो आ रहे हैं उनके लिए तो विल गो टू अप टू एनी लिमिट के वो कैंपस पे ही आके पढ़ें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चों का पहला सेमेस्टर और वो ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं। सो हम कोशिश करेंगे, इवन HEC ने और जो दूसरी HEIs की तरफ से जो एक कॉमन चीज़ बन रही है वो ये है कि 15 सितंबर तक भी हम वेट करेंगे अगर हालात बेहतर होते हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह पिछले आप एक हफ्ते से देख रहे हैं इस पैंडेमिक में थोड़ी कमी वाक़या हो रही है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सितंबर तक ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो अगर नहीं भी आती तो हमारे पास 15 सितंबर तक की डेडलाइन है, और उसके बाद भी अगर हालात इस तरह नहीं होते, खुदा ना खास्ता जिसके चांसेस बहुत कम है, तो हम अपने जो फ्रेशमैन हैं उनको कोशिश करेंगे कि SOPs को फॉलो करके उन्हें कैंपस पे ही बुलाएं। सो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो हमारा नए बैच आ रहे हैं उनको हम फिजिकल क्लासरूम टीचिंग की तरफ लेके जाएं रादर देन द ऑनलाइन टीचिंग। ओके सर, तो इसका मतलब है जो फ्रेशीज हैं वो हमारी पहली प्रेफरेंस में है कि वो यूनिवर्सिटी में आएँ, एक दफ़ा वो जो है माहौल में एडजस्ट हो जाए। डेफिनेटली उनके लिए यूनिवर्सिटी का बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होता है, कमिंग फ्रॉम इंटर बैकग्राउंड जहाँ पे आपका एनुअल सिस्टम चल रहा हो, सेमेस्टर सिस्टम इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो हमारी पहली प्रायोरिटी पे उस्मान जो फ्रेशीज हैं वो पहली प्रायोरिटी पे होंगे कि हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उनको बुला लिया जाए। HEC भी इसके ऊपर काम कर रहा है। होपफुली वी कैन कम अप विद समथिंग बाय द एंड ऑफ अगस्त। सर, इसके अलावा जब ये सारा पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और पाकिस्तान भी लॉकडाउन की तरफ चला गया था, आपसे तकरीबन 3 माह पहले की बात है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट कर गए थे। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस बच्चों के लिए किस तरह का रहा है? जी डॉक्टर साहब आप बताइए। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो हमने फास्ट का जो हमने हमारी इंटरनल पॉलिसी थी उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत सपोर्टिव रहे थे, और हमने स्टूडेंट्स को उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी थी कि अगर स्टूडेंट्स हमने कुछ टेस्टिंग की थी डिफरेंट फर्स्ट जो मंथ था लॉकडाउन का, और उसमें हमने क्लासेस स्टार्ट की थी। हमारे पास ऑलरेडी एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम ऑनलाइन मटेरियल स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस ऑनलाइन हैंडल करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी ऐसा वहाँ कोई इशू नहीं था। तो जब हमने क्लासेस स्टार्ट की तो उसके कुछ ही टाइम पीरियड के बाद हमने स्टूडेंट्स से फीडबैक कलेक्ट किया था, और स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो चाह रहे हैं कि उनको लर्निंग रिलेटेड इश्यूज हैं और वो स्किप करना चाहते हैं तो वो
फ्रीज करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा हमें ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से जो फीडबैक था वो बहुत पॉजिटिव था, कोई हमें स्टूडेंट्स की तरफ से इश्यूज नहीं आया। लेस देन 1% आप कह सकते हैं कि वो इश्यूज थे जो स्टूडेंट्स को शायद कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन जो हमारी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस, जो लर्निंग की पेडागोजी थी, वो हमारी पहले से ज़्यादा रिफाइन हुई है इस टाइम पीरियड में। हम कह सकते हैं कि पहले जो हम स्टूडेंट्स के साथ केस डिस्कशंस और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वगैरह थी, वो पहले से ज़्यादा लर्निंग सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लासेस करने में वो ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और हमें लगता है कि उससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर आई है, और उससे हमें स्टूडेंट का जो अभी फीडबैक भी कलेक्ट हुआ है फाइनल एग्जाम से पहले, वो भी बहुत पॉजिटिव रहा है। तो ये सारे इंडिकेशंस इसी तरफ के हैं कि अगर इन केस लॉकडाउन रहता है और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो ऐसी लर्निंग स्टूडेंट्स को फिजिकली वहाँ क्लासेस में होती है, वैसे ही लर्निंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में हो रही है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे ऑनलाइन। I would also like to add on this thing कि हम 15 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मैनेजमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव, और 20 मार्च को हम वी वर ऑन योर टोज टू डिलीवर द क्लास, एक्चुअल क्लासेस ऑनलाइन। और हम उन चंद इंस्टीट्यूट्स में थे पाकिस्तान में से जिन्होंने सबसे पहले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है उसका लाइसेंस परचेज किया था फ्रॉम HEC, और हमने उस पर लोगों को ट्रेन किया, अपने साथ को, अपने टीचर्स को हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी, उसके हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर किया, और वो सारा ट्रेनिंग करने के बाद पूरा एक हफ्ता फिर हमने उसको ओपन किया फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले पाकिस्तान में जिन इदारों में ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस शुरू की थी, ऑनलाइन टीचिंग शुरू की थी, उनमें से फास्ट का नाम सबसे शायद पहले आता है। तो इसलिए हमारा चूँकि एक सिस्टम ही सारा कंप्यूटर बेस्ड है, हम वी आर प्राइमरीली नोन फॉर द कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी, तो इसलिए हमें ऑनलाइन टीचिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़े, और अगर किए भी तो हमने बड़ी आसानी से उनके हल निकाल लिए। तो इसलिए अब आइंदा भी अगर हमें ज़रूरत पेश आती है तो हमारे लिए एक बड़ा इस्टेब्लिश सिस्टम मौजूद है, जिसपे हम एक सेमेस्टर का ट्रायल रन कर चुके हैं, और हम अगर ज़रूरत पेश आती है, खुदा ना खास्ता ये चीज़ें ऐसे कंटिन्यू करती हैं, तो हम वी आर वेरी मच प्रिपेयर फॉर द ऑनलाइन टीचिंग। लेकिन जो बात पहले की थी मैंने, हमारा फिर भी हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि हम जो फ्रेशमैन हैं उनको हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ ना लेके जाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास मुश्तबा वान से ही है। मैं ये भी बताता चलूँ कि मुश्तबा हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में हमारे साथ काम करते रहे हैं, स्टूडेंट अफेयर ऑफिसर की कैपेसिटी में। उनका क्वेश्चन ये है कि इन रिसर्च विच स्पेसिफिक फील्ड्स आर बीइंग ऑफर्ड लाइक HR एटसेट्रा। I just wanted to share. It actually depends on the choice of the students. हमारे पास अभी अगर हम बात करें तो मैं सप्लाई चेन और इनोवेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में रिसर्च करता हूँ नॉर्मली, और मेरी अगर MS की बात करें तो वो सप्लाई चेन के एरिया में, और अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो करंट सिनेरियो में पाकिस्तान क्योंकि CPEC की वजह से अब हमारे यहाँ सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करते हैं वो सप्लाई चेन रिलेटेड एरियाज में और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मेरी एक्सपर्टीज है, और इसके साथ साथ इनोवेशन मैनेजमेंट में मेरी PhD है। तो मैनेजमेंट स्ट्रीम्स की OB के रिलेटेड और सप्लाई चेन ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिलेटेड स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे साथ एंगेज हो रहते हैं। उसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मुनज़्ज़र सईद हैं, वो शी इज़ PhD फ्रॉम मलेशिया, और उनकी एक्सपर्टीज है मार्केटिंग में। तो वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स उनके साथ भी एंगेज होते हैं। और वो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी क्योंकि करंट सिनेरियो में पाकिस्तान का टूरिज्म ग्रो कर रहा है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली उनके साथ अपनी थीसिस वगैरह कर रहे हैं, और वो टूरिज्म डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको फर्दर अगर हम रिफाइन करें तो उससे हमारी टूरिज्म डेवलप हो सकती है। और उनकी इसके अलावा एक्सपर्टीज मार्केटिंग में है। इसके साथ हमारे पास फाइनेंस में डॉक्टर उमर फारूक हैं, और डॉक्टर उमर फारूक फाइनेंस में के साथ साथ उन्होंने इस्लामिक फाइनेंस में भी बहुत सी पब्लिकेशंस की हुई हैं, और क्वालिटी पब्लिकेशंस हैं, उनकी बहुत सी साइटेशंस हैं। तो इससे और HR के अगर लोग हों वो मेरे साथ भी काम करते हैं। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर गुलफाम हैदर, वो रिसेंटली बस उनका ग्रेजुएट होने वाले हैं PhD, तो वो इकोनॉमेट्रिशियंस हैं, और उनके साथ लोग इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में उनके साथ अपने यहाँ फाइनल डिसर्टेशन करते हैं। तो हम नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर MBA की अगर हम बात करें तो MBA में जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं उसमें स्टूडेंट्स
फैकल्टी मेंबर्स के साथ एंगेज होते हैं और उसमें वो चूज करते हैं कि वो किस फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपनी रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और उनके साथ फिर वो डिस्कशन में अपना एरिया चूज करते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो सारे इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के, HR, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स नॉर्मली अपनी रिसर्च परस्यू करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर इसके बाद अभी करना चाहूंगा क्वेश्चन तो नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वी हैव प्रैक्टिशनर्स एज वेल इन आवर डिपार्टमेंट। जैसे अगर आप बात करें, मैं हूँ, हाफिज ईशान साहब हैं, उसके अलावा आगा मुरीद साहब हैं, तो हम लोग वो हैं जो कॉर्पोरेट एरिया से आए हैं। हम PhD स्कॉलर्स तो नहीं हैं, लेकिन हमें कॉर्पोरेट एरिया के, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा स्टूडेंट जो रिसर्च करता है वो प्रैक्टिकल रिसर्च करता है, और हम अपने बिजनेस स्कूल के अंदर बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी रिसर्चेज हों वो सारी प्रैक्टिकल बेसिस की हों। कि कॉर्पोरेट सेक्टर से जो हम जैसे टीचर्स हैं वो उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके देते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को फिर PhD फैकल्टी मेंबर जो हैं उनको रिसर्च के अंदर किसी तरह इम्प्लीमेंट करके कि उस रिसर्च स्टडी के थ्रू किस तरह उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है। तो वो एक बड़ा अच्छा मिक्स बना हुआ है माशाल्लाह। तो इसलिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फिर प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाते हैं। दैट इज़ अ गुड प्लस फॉर आवर बिजनेस कोर्स। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है, ये कमेंट है ज़िशान साहब आपके लिए कि शफ़ी कश्मीरी है हमारे स्टूडेंट, उनका कमेंट है कि सर ज़िशान इज़ द बेस्ट HOD एवर। थैंक यू शफ़ी, थैंक यू वेरी मच। The next question is from Malik Ahmed Janzeb. He is our graduate from Batch 12, our pioneer. He did his BScs in computer science, obviously. His question is, can a CS graduate do MBA? जी, ऑब्वियसली मैंने पहले इस पे थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि CS ग्रेजुएट भी MBA कर सकता है। इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग भी MBA कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी लोग MBA कर सकते हैं, लेकिन उनका MBA का रूट थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्हें 30 क्रेडिट्स की डिग्री नहीं करनी पड़ती और 60 क्रेडिट्स की डिग्री करनी पड़ती है, यानी उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। MBA में 2 साल की डिग्री होती है उनकी, और उनको एक सेमेस्टर में मतलब 4-4, 5-5 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं। एज कम्पेयर टू द BBA, उनकी 30 क्रेडिट की होती है, तो 1.5 साल में उनको 3-3, 4 कोर्सेज के साथ वो थोड़ा जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। बट नेवरदलेस देयर इज अ रूट, और देयर इज अ, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन obviously go for MBA after CS. Okay, thank you sir. रऊफ हवान का क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट मास्टर्स प्रोग्राम एडमिशन। रऊफ, आई होप आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा। मास्टर प्रोग्राम के बारे में हमने काफ़ी बात की अभी। अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड था तो फिर MBA के बारे में सारी बात हो चुकी है। उसके अलावा हम फैसलाबाद कैंपस में मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी ऑफर कर रहे हैं। उसको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप admissions.nu.edu.pk पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए, और जो आपकी टेस्ट की फ़ी है वो आपको उस टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, जब आपका टेस्ट शेड्यूल होगा तो उस टाइम पे जब आपने टेस्ट सेंटर में आना है तो तब यू हैव टू ब्रिंग द फ़ी अलॉन्ग विद यू। तो आप घर बैठे बैठे सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, और अगर ऑडियंस में किसी और क्यूरी है, कोई क्यूरी, वो सवाल पूछना चाहते हैं तो वो हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। वो अभी लाइव स्ट्रीम में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अप्लाई करने का लिंक है हमारा, वो रऊफ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके हमारा सारा एप्लीकेशन का पोर्टल देख सकें। ओके रऊफ, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। Moving on, we have a question from Huzaifa Arif. He's asking that CFD campus तो quarantine center है, तो how are you saying about the sanitizing place and will it be safe at all? Dr. Saab, if you could answer this question. Yes, I just wanted to add कि first just make it clear, CFD कैंपस क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वो हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर है। तो ऐसा कोई कोरोना सस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटी के कैंपस की बाउंड्रीज में नहीं है। वो हमारा उसके लास्ट पे जो हमारी बाउंड्रीज है उनके बिल्कुल एंड में हमारा हॉस्टल है जिसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। और उसमें अभी हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन चल रही है, उसमें जैसे ही वो हॉस्टल को लीव करेंगे उसके बाद उसको प्रॉपरली वो हम डिसइंफेक्ट करेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे, और जितनी देर तक हमारी वो क्लैरिटी नहीं हो जाएगी या हमें किसी ऐसे डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन नहीं हो जाएगी, हम उसको अभी ओपन नहीं करने वाले। और कैंपस में कोई इस तरह के कोरोना सस्पेक्ट्स नहीं है, सिर्फ हॉस्टल को यूज किया गया है क्वारंटाइन सेंटर के लिए, और वो जब भी फ्री होगा उसके लिए हमें फिर नेक्स्ट 10 to 15 डेज चाहिए होंगे, और उसको सैनिटाइज करने के बाद ही वो स्टूडेंट्स को ओपन करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।
Another question is from Hamza Ahmed. His question is, students who have cleared FSC will give the first marks or the complete FSC marks for admission? हमजा, अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लियर कर चुके हैं आपने, इसका मतलब आपने सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे और उसका रिजल्ट भी आ चुका हुआ है, तो फिर यू विल बी गिविंग द कंप्लीट एफएससी रिजल्ट फॉर व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन। अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, या फिर आप उन लोगों में जिनको प्रमोट किया गया था, जिन लोगों का सेकंड ईयर का रिजल्ट पेंडिंग था गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर आपने अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही वहाँ पे अप्लाई करने, आपने सेकंड ईयर के मार्क्स वहाँ पे नहीं देने। आई होप ये क्वेश्चन इज आंसर्ड सर। बहुत सारी चीज़ें हमारी अभी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस हो रही हैं, थोड़ा सा मैं कैंपस लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कैंपस लाइफ में it plays the extracurricular activities and the co-curricular activities play a very vital role in terms of personality development for students, और obviously students के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो स्पोर्ट्स से और दूसरी एक्टिविटीज़ से सीखते भी हैं। तो सर आगा मुरीद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो फास्ट फैसलाबाद में जो हमारी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिकली, वो कितनी एक्टिव हैं और स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे कितनी एक्टिव रहती है? अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्टली मैं खुद फास्ट से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन फास्ट से है, मैं मास्टर भी फास्ट से है। तो उसके बाद मैं कैंपस लाइफ का थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक फास्ट की परसेप्शन है कि कैंपस लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्टडी एंड स्टडी फास्ट की। तो फास्ट में बेसिकली ये है, ये क्वालिटी एजुकेशन तो है लेकिन क्वालिटी टाइम भी प्रोवाइड करता है आपको। इसमें ये है कि आपको हम क्वालिटी टाइम, इसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे पास कैंपस हमारा बिल्कुल 2012 में बना हुआ है, तो कैंपस में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया है। हमारे पास लैब्स हैं, इवन कि आप अगर कोई काम आपको पड़ता है, लैब्स नहीं हो रही, तो आप लैब्स में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन रूम्स अलग-अलग हैं दोनों के। इंडोर आउटडोर गेम्स हैं। हमारे पास 22 एकड़ का कैंपस है माशाल्लाह से। उसके अलावा इसे मज़ीद एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। इवेंट्स में हमारे फेयरवेल और वेलकम के अलावा कुछ सोसाइटीज़ के इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारा साल का एक मेगा इवेंट होता है हर कैंपस का। जैसे हम कह सकते हैं कि बेंचमार्क होता है, माना जाता है इस कैंपस का एक बड़ा एक इवेंट है। हमारा फास्ट CFT कैंपस का इसी तरह दायरा है। इसमें छोटे छोटे सारे इवेंट्स मार के कोई 2-3 दिन का इवेंट बनता है, वीकेंड पे चलता है, और माशाल्लाह से इसकी पूरा फैसलाबाद, पूरा ये सारा रीजन कवर करते हैं हम यहाँ से। इवन के इस्लामाबाद और लाहौर से भी लोग यहाँ पे आते हैं इवेंट के लिए। इवेंट में डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं। फिर उसके अलावा उस इवेंट में तो बहुत बच्चों की पार्टिसिपेशन होती है, सेल्फ डेवलपमेंट होती है इनकी थोड़ा सा ग्रूमिंग होती है। जिसे हम कहते हैं 4 साल के अंदर हम ग्रूमिंग करते हैं इनकी। किस तरह ग्रूमिंग करते हैं, इसमें आपके डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है। मैं सोसाइटीज़ पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ इस वक्त फास्ट कॉर्पोरेट सोसाइटी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और सोसाइटीज़ हैं, फोटोग्राफी सोसाइटी। अच्छा, फास्ट कॉर्पोरेट सोसाइटी का ये है कि हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि एकेडेमिया और आपकी जो इंडस्ट्री है इसके दरमियान लिंकेज क्रिएट कर सकें। उसमें हमारा पर्पस ये होता है, बिफोर जब आपका बच्चा मार्केट में जाए उसे पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में होता क्या है, इंडस्ट्री में आप काम किस तरह कर सकते हैं, इंडस्ट्री चलती किस तरह है, इंडस्ट्री में आप एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले आपको नो हाउ होनी चाहिए कि काम किस तरह करना है। उसके लिए हमने सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। सेमिनार्स हमने लास्ट टाइम इनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टूर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का टूर, इसमें टोटल क्रेडिट जाता है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने काम किया। स्टूडेंट ओन्ड सोसाइटी है, उन्होंने काम किया, उन्होंने ही आगे अपनी बाकी स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया। ठीक है, इसी तरह और सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमारी फास्ट फोटोग्राफी सोसाइटी है, साइलेंट स्टेप्स है, गूंज के काफ़ी छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते हैं। इन इवेंट्स से होता ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को शो कर सके, अपने आप को बता सकें कि उनका पोटेंशियल कितना है यूनिवर्सिटी लाइफ में। इसके अलावा हमारे और कोई छोटे मोटे इवेंट्स हमारे होते ही रहते हैं, यानी कि साइलेंट स्टेप्स के कई इवेंट्स हो गए। ये स्टूडेंट लाइफ माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी है। यहाँ पे काफ़ी आपको टाइम मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का। यहाँ पे हमारे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑडी 400 प्लस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है ऑडिटोरियम में। इसके अलावा लैब्स, आप बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नया कैंपस बना हुआ है और किसी चीज़ की कमी नहीं। हमने जिम्नेजियम बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि आप इवन के वहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। फील्ड्स हैं, क्रिकेट है, फुटसॉल है, हर चीज़ की सोसाइटी है। इस तरह इनकी भी स्पोर्ट्स की सोसाइटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन इनका हमारा जी यहाँ पे है कैंपस लाइफ। आप सारे इंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स।
टू ऑगमेंट द कमेंट्स गिवन बाय मिस्टर आगा मुरीद, मैं एक चीज बता दूं कि इस सारी बातें क्रक्स ये है कि मैनेजमेंट साइंस में जो स्टूडेंट्स होते हैं दे लर्न बाय डूइंग थिंग्स। तो हम इनको एक पूरा प्रोवाइड करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट के जिसके अंदर बच्चे जो है वो काम करके सीखे हैं। तो हम ये सारा सोसाइटी स्ट्रक्चर जो होता है उससे फिर ये फायदा होता है कि लोग काम करते हैं और उसके बाद वो सीखते हैं। ओके, थैंक यू सर। इसमें मैं डॉक्टर सैफ का भी एक कमेंट लेना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये भी चीज़ एडिशन कर दूँ कि दायरा में हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन आती है। जो दायरा 2019 हुआ था हमारे पास वहाँ उस टाइम पे, तब कोयटा से भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए थे, ब्यूटम से, और बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ से थी, और हमारे पास कश्मीर से भी आते हैं, हमारे पास कराची से पार्टिसिपेंट्स आए, हमारे पास पेशावर से आए थे, खैबर पख्तूनख्वा से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए थे। तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट रीजन से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं। और इसमें एक चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये जितने भी स्टूडेंट आ रहे होते हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे होते हैं, ये सारे अपनी अपनी फील्ड्स में काफ़ी आप कहें प्रोएक्टिव होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ उनको भेजती है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इवेंट्स को खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। उनकी बजटिंग, उनकी फाइनेंसिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक वो सारे का सारा काम खुद कर रहे होते हैं। और वो लीडरशिप पोजीशंस में भी काम कर रहे होते हैं। तो लीडरशिप में काम करते हुए उनको मैनेजरियल स्किल्स आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। वो बहुत सारे डिफरेंट गेस्ट के साथ भी मिलते हैं। तो एक अच्छा ब्लेंड बन जाता है जो कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। डॉक्टर साहब, आप भी दायरा में टीम्स को हेड करते हैं, तो बच्चों को आपने किस तरह से देखा कि वहाँ पे अंडर प्रेशर काम करते हुए क्या वो और चीज़ें कुछ सीख पाते हैं? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट नहीं होता, इसमें बहुत सी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, जिसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो इसमें हमारी गेमिंग की, अगर सीएस रिलेटेड बात करूँ तो गेमिंग्स होती हैं, और अगर मैनेजमेंट रिलेटेड हो तो वहाँ पे हमारे इसमें बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स होते हैं। स्टूडेंट्स अपने वहाँ प्लान, जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं, उनके प्रोटोटाइप्स बनाकर लाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और लास्ट टाइम हमारे कैंपस के स्टूडेंट्स से ज़्यादा दूसरे कैंपस के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो उससे ये हुआ था कि एक हमारे स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्टिव स्किल्स थी वो बहुत बेहतर हुई। हमें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का मौका मिला, और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे कैंपस में आके उन्होंने हम लोगों से सीखा। तो वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से लर्निंग हुई। और इसके साथ साथ अगर जब हम स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी देते हैं, क्योंकि अभी वो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं गया, तो उस हमने बहुत सा थ्योरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को दिया होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी देते हैं, हम उन्हें डिसीजन मेकिंग स्किल्स देते हैं कि ये एक टीम है और आपने इस टीम को मैनेज करना है, तो वो स्टूडेंट्स उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसे हुआ कि हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्टूडेंट्स अब इस तरह की एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स शो करेंगे, लेकिन जब वो इवेंट सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल क्या है। तो इन इवेंट्स से स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जो कि शायद एक बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्योंकि अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एक फुल फ्लैज पॉलिसी और एक फुल फ्लैज सिस्टम होता है। स्टूडेंट्स वहाँ बाउंड होता है कि वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करते हुए कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि एक इवेंट है, तो एक सपोज पर्टिकुलर टीम है, तो हम उसे स्टूडेंट्स को फुल ऑटोनॉमी देते हैं कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यूज करे। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो स्किल्स होती हैं वो पहले से ज्यादा एनहेंस होती हैं, और वो ज्यादा अपनी डिसीजन मेकिंग को यूज करते हुए जिस तरह की भी डिसीजन मेकिंग करना चाहे वो करते हैं, और इवेंट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो यह हमें लगता है कि इन इवेंट्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स को, इंटरपर्सनल स्किल्स को, हम एनालिटिकल स्किल्स को हम और ज़्यादा एनहेंस कर रहे होते हैं, और हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो ऐसे इवेंट्स को ज्वाइन करें ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। थैंक यू सर। मैं मेंशन करना चाहूँ जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सोसाइटीज़ एक्टिव हैं जो काम कर रही हैं, उसके अंदर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन की सोसाइटी है फास्ट डिज़ाइन स्टूडियो के नाम से। हमारे पास फोटोग्राफी की सोसाइटी है जिसका नाम सर आगा मुरीद ने लिया था, फास्ट फोटोग्राफी सोसाइटी। हमारे पास आर्ट्स के लिए एक सेपरेट सोसाइटी जिसका नाम रंग है। लिटरेचर के लिए हमारे पास सुखन नाम की सोसाइटी काम कर रही है। डिबेटिंग और डिक्लेमेशन से रिलेटेड जो हमारी सोसाइटी है उसका नाम बोल है। ड्रामा से रिलेटेड हमारे पास डेमोक्रेट सोसाइटी काम कर रही है। सिंगिंग के लिए हमारे पास सोसाइटी सिम्फोनिक्स के नाम से काम कर रही है। SGS जो है हमारे पास स्पोर्ट्स स्किल सोसाइटी जो कि तमाम स्पोर्ट्स को डील करती है। फास्ट कॉर्पोरेट सोसाइटी जिसको सर आगा मुरीद मेंटोर कर रहे हैं।
ये तमाम सोसाइटीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, जो कि ओवरऑल तकरीबन 17 का काउंट बनता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर कर रही हैं। सर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास हमजा शफकत की तरफ से है। उनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं कि why CFD campus is not offering courses like data sciences and AI in like other campuses। तो हमजा मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ इसके अंदर। मुझे पता, मेरे ख्याल से आप बैचलर्स के बारे में पूछ रहे हैं। अभी फैसलाबाद के अंदर बैचलर्स अभी AI और डेटा साइंसेस के अंदर तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे अब डेटा साइंस और AI दोनों, AI तो पहले ही हमारे पास कोर कोर्स है, मशीन लर्निंग हमारे पास AI से रिलेवेंट जो है एज अ इलेक्टिव ऑफर हो रहा है, डेटा साइंस हमारे पास ऑफर होता है, डेटा माइनिंग हमारे पास ऑफर होता है, डेटा वेयर हाउसिंग हमारे पास ऑफर होता है। तो जो BS डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो आप BS CS करते हुए भी CFD कैंपस से उनको ऑप्ट कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद AI। आपके पास कोर कोर्स है जो कि HEC की तरफ से, उसके साथ आपको मशीन लर्निंग भी आज आप एज एन इलेक्टिव भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है कि जो उससे रिलेवेंट डिग्रीज़ हैं, हम स्पेशलाइजेशन उसके अंदर कब ऑफर करेंगे, तो होपफुली वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट परहैप्स नेक्स्ट ईयर। थैंक यू हमजा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम उमर इज़ आस्किंग, सर अगर कोई बंदा बाहर से BBA करके आए तो उससे कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी? प्रशांत साहब। जी मुगीस, इसमें यह है कि बाहर से BBA करके वो क्या MBA में एडमिशन लेना चाहता है या BBA में एडमिशन लेना चाहता है। दो तरह के केसेस होते हैं कि एक तो ऐसे होता है कि कोई बंदा बाहर से BBA करके आता है और उसने हाफ डन किया होता है वहां से 1-2 सेमेस्टर, उसके बाद फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ BBA में एडमिशन दें। तो उसमें तो एग्जाम्पशंस के चांसेस हो सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स कि वहाँ पे उन कोर्सेज में क्या कंटेंट आपने पढ़ा है। तो आप अपना कंटेंट सारा सबमिट करते हैं, हमारी एक एग्जामिनेशन कमेटी होती है, वो उसको पूरी तरह से एनालाइज करती है और उसके बाद देन वी डिसाइड कि हमने उसको किन किन कोर्सेज में एग्जामिनेशन हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप BBA के बाद MBA की बात करें तो फिर तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाहर से करके आ रहे हैं, पाकिस्तान में किसी HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हैं, तो दैट इज द सेम थिंग। Okay, thank you, sir. Mateen Chima has a question. He's asking, sir, if the university opens and hostels are not available, then how will the students from other universities attend classes? I guess Mateen is referring to the quarantine situation. इसमें अभी क्योंकि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कोरोना सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं उन्हें रिलीज नहीं किया, तो उसी वजह से हमारा हॉस्टल भी रिलीज नहीं किया गया। ईद के बाद से अभी तक वहाँ किसी भी पेशेंट को नहीं रखा गया। तो रिसेंटली हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके हॉस्टल को रिलीज करवा लें। तो होपफुली हमारा हॉस्टल यूनिवर्सिटी ओपन होने से पहले ही रिलीज हो जाएगा और हम उसे पहले से ही क्लियर करके सैनिटाइज करने के बाद स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, क्योंकि अभी हम जो प्लान कर रहे हैं उसमें क्लासेस का स्टार्ट 30 अगस्त से है, तो अभी स्टिल हमारे पास टाइम है। तो इसी वीक में हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी हुई है, तो होपफुली हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तो स्टूडेंट्स के आने से पहले हॉस्टल क्लियर हो चुका होगा। और सर प्रॉब्ली जब हमारे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी तो फिर हमारे पास ये भी सिनेरियो के जो गवर्नमेंट जब हमें डेट देगी कि HEC यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दे, तो प्रॉब्ली जब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे उनको क्वारंटीन सेंटर्स हमने बना के दिए थे, तो प्रॉब्ली वो हमारे यूनिवर्सिटी डेट से पहले ही सारे जो हॉस्टल्स हैं उनको रिलीज कर देंगे। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सर। Hasibur Rahman has a question. Sir, why is Fast CFD is not promoting or offering accounting and finance? देखें, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है टॉप मैनेजमेंट का। हम देखते रहते हैं गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम्स को कट शॉर्ट करना है या किसी प्रोग्राम को इन्हांस करना है। तो कभी हम हो सकता है आने वाले दौर में जैसे कुछ चीज़ें बड़ी बेहतर होती है तो हम अकाउंटिंग फाइनेंस को रिज्यूम करें, लेकिन राइट नाउ वी नॉट हैविंग एनी प्लान टू रिज्यूम द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एट फैसलाबाद कैंपस। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। हम वी नाउ वांट टू मूव टुवर्ड्स द अदर डिग्री प्रोग्राम लाइक BS डाटा एनालिटिक्स एंड BS बिजनेस इंटेलिजेंस एटसेट्रा। तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, दैट्स इट। Okay, thank you, sir. Another question we have from Dilshad Akram. He is asking, क्या Fast CFD HEC recognized university है?
एक्चुअली आई वांट टू शेयर कि फास्ट का कोई भी कैंपस अगर कोई प्रोग्राम इशू करता है तो वो हमारे एचईसी की अप्रूवल के बगैर इशू नहीं करते। तो उसके लिए हम नॉर्मली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हैं और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद नॉर्मली प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। अभी हमारा एमबीए और बीबीए दोनों प्रोग्राम की एचईसी से अप्रूवल है और वो हम ऑफर कर रहे हैं, और उसके लिए जो रेगुलर प्रैक्टिसेस एचईसी की होती हैं वो हम फॉलो करते हैं। और उसमें एक सेल्फ असेसमेंट रिव्यू विजिट्स होते हैं जिसमें जो एक्सटर्नल्स नॉर्मली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एचईसी की वो उनको आके चेक करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो एचईसी को नॉर्मली एवरी ईयर वो सबमिट हो रहे होते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस एचईसी के रिकमेंडेशंस पर हो रहे होते हैं जिनमें वो एचईसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा होता है। और दोनों प्रोग्राम्स जितने भी मैनेजमेंट स्कूल की अगर बात करूं तो वो भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हैं और इसी तरह बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के भी प्रोग्राम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद ही किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के बहुत से ऐसे डिफरेंट कैंपसेस हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हैं और उन पे एचईसी की सैंक्शंस भी हैं क्योंकि उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की। लेकिन फास्ट का कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फास्ट नॉर्मली ऑल रिक्वायरमेंट्स जो एचईसी की होती हैं वो फुलफिल करने के बाद प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम एचईसी की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और वो अक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट फास्ट में एडमिशन ले रहे हैं एटलीस्ट दे शुड स्टे एट पीस ऑफ माइंड कि हमारा कोई भी प्रोग्राम हम कभी ऐसा लॉन्च ही नहीं करते जो एचईसी अप्रूव ना हो। फास्ट इटसेल्फ इज अ चार्टर्ड यूनिवर्सिटी। हमारे 5 कैंपसेस और 5 कैंपसेस में पिछले 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया हम ये प्रोग्राम डिफरेंट डिग्री लॉन्च कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि आधे रास्ते में जाके पता चले बच्चों को कि ये तो डिग्री एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इस तरह के मामला फास्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। इसमें से मैं और क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा, क्या ये एचईसी की तरफ से विजिट्स होते हैं एक्रेडिटेशन के लिए, वो आके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं जिनकी बेसिस पे वो वैल्यूएट करते हैं कि क्या हमने इस यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करना है कि नहीं करना? क्या वो चीज़ें इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं, जो उनको फैकल्टीज ज़रूरी है, क्या उनको उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर मिल रही है? इसमें एक एचईसी का रूब्रिक होता है जिसमें डिफरेंट आप कह सकते हैं सेक्शंस होते हैं जिनमें कुछ फैकल्टी रिलेटेड होते हैं कि आप एक सर्टन प्रोग्राम के लिए कितनी फैकल्टी रिक्वायर है, वो फैकल्टी का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए और वो फॉरेन क्वालिफाइड हो, रिसर्च रिलेटेड हो, प्रैक्टिशनर्स हो, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज ऑफर की जा रही हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं। और इसमें स्टूडेंट्स को एक तो बाज़ दफ़ा होता है कि कैंपस बहुत सी फैसिलिटीज़ सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेड कर देते हैं कि हमारे पास है, लेकिन क्या जब ये एचईसी विजिट्स होते हैं वो एक्चुअली वेरीफाई करते हैं और वो स्टूडेंट्स को क्लासेस में विजिट करते हैं, उन स्टूडेंट्स का फीडबैक कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंटली वो फैकल्टी मेंबर्स का फीडबैक कलेक्ट कर रहे होते हैं कि फैकल्टी को क्या फैसिलिटीज रिक्वायर हैं और क्या फैसिलिटीज ऑफर की जा रही होती हैं। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और वो फिजिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के बाद उस रूब्रिक को फिल करते हैं और उसमें जो नॉर्मली रिकमेंडेशंस होती हैं वो एक्सटर्नल की तरफ से वो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और वो रिकमेंडेशंस पे नेक्स्ट फिर उस पे हमारा जो भी वर्किंग प्लान होता है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए वो होता है और नेक्स्ट ईयर वो पहले से चीजें ज्यादा, ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस है एक्चुअली। और हम नॉर्मली ऐसे प्रोसेस को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इससे हमें सीखने का मौका मिलता है कि जो एचईसी नॉमिनेटेड इवैल्यूएटर्स आते हैं वो हमारे सिस्टम में अगर कुछ लूप होल्स हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमें आइडिया हो कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको बेहतर किया जा सकता है। तो वो नॉर्मली उस पर विद इन नेक्स्ट 1 वीक में हमारा वो नेक्स्ट प्लान एस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर सपोज कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और रिसेंटली हमारा जून में हमने अभी एसएआर किया, सेल्फ असेसमेंट रिव्यू विजिट किया और उसमें जो फोकस था वो कोरोना के की वजह से था कि अभी हम जो कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड है वो कैसे है, उससे स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, फैकल्टी की सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है और उसमें जो भी उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस थी और वो एक्सटर्नल की तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया कि हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो हमारा एलएमएस है, हमारे डिफरेंट मीडिया है जिससे हमने स्टूडेंट्स को एंगेज किया हुआ है, वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम क्यों हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसमें सिकंदर साहब हैं वो बहुत एक्टिवली एंगेज हैं और वो एक्सटर्नल्स को इन्वॉल्व करके ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और फिर थ्रू आउट द ईयर हमारा वो प्लान
चल रहा होता है, जो कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दोज एक्सटर्नल्स हमने डिज़ाइन किया होता है, और वो हमारा उस पर हम काम कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट ईयर फिर वो प्रेजेंट करते हैं कि लास्ट रिकमेंडेशंस क्या थी, उस पर क्या काम हुआ, और फिर उसके फर्दर दोबारा इवेल्यूशन होती हैं, और फिर हम उस पर फर्दर काम करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिससे हमें सीखने का मौका मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज, क्वालिटी एजुकेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और उस डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में ये हेल्प आउट करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इसका मतलब है कि जो HEC की तरफ से विजिट्स होते हैं दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और वो डिफरेंट बैचेस को क्रिएट करते हैं और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। दिलशाद, इसके अंदर मैं ये भी ऐड करता चाहूँ कि हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो PEC से रिकग्नाइज्ड है, एक्रेडिटेड है, और जो हमारा कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स है वो NSEC एक बॉडी है जो कि कंप्यूटर साइंस को डील करती है, उनकी तरफ से उनकी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स की वेटिंग हुई भी है। अब्दुल्ला सदीक का क्वेश्चन है कि सर क्या टेस्ट हो रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी का? जिशान साहब क्वेश्चन तो एड्रेस हो चुका है, लेकिन अगेन अगर आप इनको बता दें। जी हाँ जी, मैं बता देता हूँ। BBA का तो टेस्ट हम नहीं ले रहे इस दफ़ा, लेकिन मास्टर्स का प्रोग्राम जो हमारा है MBA, उसमें हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अब्दुल्ला, अगर आपका क्वेश्चन किसी और डिपार्टमेंट से रिलेवेंट था तो ये बाकी डिपार्टमेंट में से ऐसे यही अप्लाई हो रहा है कि जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर हमारा टेस्ट नहीं हो रहा, और जो हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको एडमिशन टेस्ट फिर भी देना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन। आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब तक कितने बैचेज उनसे हैं हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हो चुके हैं, बैचलर्स के और मास्टर्स के? जी, मैं आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। अभी तक जो है हमारे 4 बैचेस जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। 2012 में हमने पहला बैच लिया था जो 2016 में ग्रेजुएट हुआ, और हमारा जो 5वां बैच है BBA का वो दैट इज़ अबाउट टू ग्रेजुएट। एंड रिगार्डिंग MBA हमारे अभी जो है वो 3 बैचेस ग्रेजुएट हुए हैं, और 4th बैच जो हमारा है वो ग्रेजुएट होने वाला है इंशाल्लाह अभी इस जुलाई के एंड पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर वेल रिसीव्ड बाय द इंडस्ट्री, और बड़े अच्छी जगहों पे प्लेसमेंट है फैसलाबाद के अंदर और इवन पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द आप पूरा जोग्राफिकल एरियाज में देखें तो बड़े बड़े अच्छे ब्रांड नेम्स के साथ करीम में हमारे लोग हैं, इंटरलूप में हमारे लोग हैं, UBL में हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर है, स्टारा में हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्रीसेट में हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो KNM में हमारे मतलब आप हमारे पास जो प्लेसमेंट की लिस्ट आती है हम ग्रेजुअली उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और उसको अपडेट भी कर रहे होते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे जो ग्रेजुएट यहाँ से पास आउट होते हैं वो बड़ी अच्छी जगहों पे जाके मार्केट में वो अपना नाम कमा रहे हैं और अपने इदारे का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं जिसको एम्फोसाइज करना चाहूँगा, बिजनेस स्कूल से जो ग्रेजुएट निकलते हैं यूजली वो 2 तरह की प्रॉड होती है। एक प्रॉड तो वो होती है जो जाके जिसने किसी फंक्शनल पोजीशन पे फिट इन होना होता है, जैसे मैनेजर फाइनेंस है, मैनेजर मार्केटिंग है, मैनेजर ब्रांड मैनेजर बन गया बंदा। अच्छा, दूसरी तरह की प्रॉड वो निकलती है जिसने जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना होता है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो फास्ट CFT के अंदर एक ये हमारा हमेशा से रहा है कि हम वी फोकस टू मच ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट द एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। पाकिस्तान स्टार्टअप कप को हम होस्ट करते हैं, गूगल का वीकअप जो होता है, स्टार्टअप वीकेंड जो होता है उसको हम होस्ट करते हैं, शेफर्ड पाई को हम होस्ट करते हैं। तो इस तरह के जितने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं जब वो फैसलाबाद में आते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह के इवेंट्स को हम फैसलाबाद कैंपस में होस्ट करें और हमारे बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जो है और एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम से उनकी अवेयरनेस है और वो स्पिरिट हम उनके अंदर इंकलकेट कर सकें। अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज करने का नतीजा ये निकला कि हमारी जितनी भी अभी तक ग्रेजुएट हमारे यहाँ से निकले हैं उनमें से जब हम डाटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 40% वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने नए बिजनेस इस्टेब्लिश किए हैं या उन्होंने अपने फोर फादर्स के बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, बिन कमाल है, उसके अलावा 1-2 जिम हैं और इस तरह के बेशुमार कंपनीज हैं जिन्होंने बच्चे हैं जिन्होंने जाके अपने वेंचर इस्टेब्लिश किए हैं और दे आर सक्सेसफुली रनिंग दोज वेंचर्स। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि फैसलाबाद के खून में चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप का वो एलिमेंट शामिल है, इनके इन बच्चों के जीन्स में जो है वो ये चीज़ शामिल है कि ये कारोबारी लोग हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौके दें कि जिनके थ्रू वो अपना कारोबार करने को तरजीह दें एंड दे बिकम एम्प्लॉयर रादर देन एम्प्लॉय। Thank you very much.
सर इससे आगे मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे पास हमारा कैंपस है फैसलाबाद के थोड़े आउटस्कर्ट्स पे बना हुआ है, तो क्या हम बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं? सैफ साहब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमारे इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक फुल फ्लैज एक फ्लीट सिस्टम है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें 11 रूट्स हैं जो कि फैसलाबाद के डिफरेंट जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। उसके साथ हमारा आफ्टरनून में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में आते हैं और वो उनकी क्लासेस अंटिल नून अगर वो क्लासेस अटेंड कर चुके होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने के लिए भी हमारे रूट्स मैनेज किए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को फैसलाबाद में ड्रॉप करते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड फीमेल्स के लिए रूट्स हैं जो कि हमारे गर्ल्स हॉस्टल में स्टूडेंट्स को ड्रॉप कर पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं, और वहाँ से वो नॉर्मली मॉर्निंग में भी ऑपरेट होते हैं और वो इवनिंग में भी ऑपरेट होते हैं। तो ये 11 रूट्स हैं, और अगर हमें लगता है कि किसी दूसरी लोकेशन से जहाँ से स्टूडेंट्स ज़्यादा आना चाह रहे हो, तो वो रूट्स स्टूडेंट्स की ओपिनियन पे वो चेंज भी किया जा सकता होता है। थैंक यू सर। एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि बीबीए का डिग्री प्रोग्राम करने के बाद हाउ इफेक्टिव इज इट टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, या आप अपने स्टार्टअप के ऊपर काम करें या फिर जॉइन अ बिजनेस? I want to add कि give me a minute. डॉक्टर साहब आप हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात करें तो हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से ड्यूरिंग 4 ईयर ऑफ द प्रोग्राम बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्योंकि कंपटीशंस हो रहे होते हैं और एंटरप्रेन्योरियल सेशंस हो रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स उससे इतना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स डेवलप हो चुकी होती हैं कि स्टूडेंट्स बैचलर प्रोग्राम में ही अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके होते हैं। क्योंकि हमारा जो 3rd ईयर होता है उससे स्टूडेंट्स अपना एक FYP स्टार्ट करते हैं जिसको हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स अपना एक बिजनेस प्लान चूज कर लेते हैं, और वो लास्ट 1 ईयर में उन्होंने उसी बिजनेस प्लान की फिजिबिलिटी प्रिपेयर करनी होती है जिसमें मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना है, उन्होंने अपने मार्केटिंग डिजाइन करनी है, उन्होंने फाइनेंशियल इश्यूज और फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक कंप्लीट एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने वो सबमिट करनी होती है। तो इसी नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसको वो बिजनेस की शेप में ले आते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स में, अगर हमारे ग्रेजुएटिंग बैच की बात करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे उन्होंने वही अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में प्रेजेंट करने के बाद, जिस तरह RFID की मैं बात करूं, उन स्टूडेंट्स ने वो प्रेजेंट करने के बाद वहां से फंडिंग जनरेट की है, और उन फंडिंग्स को जनरेट करने के बाद उन्होंने वहां से उन्हें पार्टनरशिप्स मिल जाती हैं, और उससे वो फाइनेंसिंग से वो बिजनेस को प्रैक्टिकल शेप में लेके आना उनके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। और अभी मैं ग्रेजुएटिंग बैच की अगर बात करूं, 2016 बैच जो है उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हुए हैं, और इसी अगर लॉकडाउन की बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें अभी लॉकडाउन में अपने बिजनेस के रिलेटेड ये सप्लाई चेन रिलेटेड क्यूरीज हैं कि हमें ये हैंडल करनी है। तो अगर मैं बात करूं तो वो अराउंड 20 to 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर चुके हुए हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने पेरेंट्स के बिजनेसेस को जाके वो डील करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मे बी फर्दर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। तो हम नॉर्मली स्टूडेंट्स में इतनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट्स डेवलप कर देते हैं कि स्टूडेंट्स अपने बिजनेसेस की तरफ परसू करते हैं, और अगर उनको फंडिंग या दूसरे रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो फिर वो जॉब या फर्दर एजुकेशन की तरफ भी मूव करते हैं। थैंक यू सर। जिशान, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, एंड मैं बस इसको समराइज कर देता हूँ। देखें 40 कोर्सेज हैं पूरी डिग्री में 4 साल में। सवाल ये पूछा गया था कि 4 साल में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। 40 कोर्सेज हैं जी, और हर कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट आवर का है, 4 साल में बच्चे ने वो पढ़ने हैं। उसके बाद FYP होता है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया जो हम प्रेफर करते हैं, हम एम्फसाइज करते हैं बच्चे पे कि उसने जो बिजनेस करना है उसी को एज FYP अपना आइडिया रजिस्टर कराए। अच्छा, और उस FYP के अंदर 6 कम से कम प्रेजेंटेशन होती हैं और पूरे पैनल के सामने होती हैं, जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के लोग, वो लोग जिस तरह फैकल्टी है जिसका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी है, जिसका एकेडमिया बैकग्राउंड भी, वो उसके आइडिया को वेट करती हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसमें खामियां कोताहियां निकालते हैं, और इतनी हम एफर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ तीसरा एलिमेंट जो होता है वो जो स्टार्टअप कप्स वगैरह हो रहे हो, तो उसमें हम उस बच्चे को रजिस्टर करा देते हैं ड्यूरिंग दैट ईयर उस आइडिया को। उस पर फिर जो हमारे इस कैंपस के बाहर से लोग आते हैं वो भी उसको वेट करते हैं, वो भी उसके आइडिया को इम्प्रूव करते हैं।
और मेरा ख्याल है ये इतनी एक्टिविटी काफ़ी होती है कि 1-4 साल के अंदर आप इतना कुछ सीख जाते हैं और आप अपने बिजनेस आइडिया को इतना रिफाइन कर लेते हैं कि आप उसको आसानी से, अगर इफ़ यू हैव अ विल, तो आप उसको आसानी से जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट। थैंक यू। Thank you so much, sir. Clearly, BB is the right choice for you if you have a businessman's mind with you. एक और क्वेश्चन है हमारा एसएन अजीम चौधरी का है। सर, आई वांट टू नो अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी प्री एग्रीकल्चर, ईदर दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन फास्ट और नॉट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा इनकम्प्लीट है। इधर दे वांट टू अप्लाई, एलिजिबल टू अप्लाई फास्ट के किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस में तो एग्रीकल्चर के साथ अगर आपने प्री उसमें किया हुआ है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बिजनेस में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इससे बच्चे को हमारा कोई हमसे राब्ते में रहे और बताए कि उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो प्राइमरीली इस तरह का कभी कोई केस हमारे सामने आया नहीं कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर, उसमें सब्जेक्ट्स क्या चूज किए हैं वो डिपेंड करता है। अगर तो बायो वगैरह के साथ पढ़ रहा तो फिर तो ठीक है, चूंकि एचईसी ने अलाउ कर दिया है और एनसेक ने भी अलाउ कर दिया है, इवन वो कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस में तो पहले ही कर सकते थे। सो इट डिपेंड्स कि उन्होंने उसके अंदर कोर्सेज क्या पढ़े हुए हैं। इसमें वो अभी हम एंटरप्रेन्योरियल सेशंस पे बात कर रहे थे, तो उसमें मैं फर्दर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी सीपैक की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि डेफिनेटली सीपैक की सिनेरियो में बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स की मूवमेंट थ्रू पाकिस्तान होनी है। पहले भी पाकिस्तान बहुत सी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स हैं उनमें डील कर रहा है जो अफगानिस्तान रिलेटेड थी, लेकिन अब स्पेसिफिकली चाइना की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होनी है पाकिस्तान से, तो उसमें पाकिस्तानी जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज हैं उन्होंने एंगेज होना है। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने सप्लाई चेन में जिनकी स्पेशलाइजेशंस होंगी, जो स्टूडेंट सप्लाई चेन में फील करते हैं कि उनका की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर है, वो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को जानते हैं, तो वो स्टूडेंट्स उनके लिए चांसेस हैं कि वो इन सप्लाई चेन कंपनीज को डील कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ हमारी पाकिस्तानी कंपनीज भी हैं जो कि चाइना में प्रोडक्शन करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वहाँ से नॉर्मली उनकी इंपोर्ट हो रही होती हैं, एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं। तो उसके लिए क्योंकि अब हमारी बॉर्डर्स ओपन होंगी तो उससे जो मूवमेंट है वो ओपन होनी है। तो उस मूवमेंट को डील करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, जिसमें हमारी रोड ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी रेल ट्रांसपोर्टेशन है और जो सी ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, उसको डील करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड अभी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो हम स्टूडेंट्स को पहले से माइंड मेकअप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये जो जॉब्स क्रिएट होनी है इसके लिए सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स की डिमांड है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लोगों की डिमांड है। तो उसके लिए नॉर्मली हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। हमने ऑलरेडी जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें भी हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन और मार्केटिंग चैनल्स, और स्पेसिफिकली जो हमारा मार्केटिंग चैनल है उसमें हमारा जो अभी क्योंकि करंट ई कॉमर्स के सिनेरियो में हम ई मार्केटिंग चैनल का जो मार्केटिंग चैनल है उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो अभी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, हमारी जो 2 बिलियन से ज्यादा की अभी ऑनलाइन बिजनेसेस पाकिस्तान में ई कॉमर्स बिजनेस है, तो इस ई बिजनेस में आप अपनी प्रोडक्ट्स कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम से कम कॉस्ट में इफेक्टिवली एट द राइट टाइम आप स्टूडेंट को कैसे डिलीवर, अपने क्लाइंट को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हम उस पे स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं। और हमारे जिस तरह ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ई कॉमर्स ई बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्योंकि हमने सप्लाई चेन के कोर्सेज डिस्कस किए हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, मार्केटिंग चैनल्स के की डिस्कशंस हुई हैं, और इसके साथ जो हमारी अभी करंट पेडागोजीज हैं, जो टीचिंग पेडागोजीज हैं, उसमें हमने क्योंकि अभी जो अगर हम अपने बीबीए की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको कंपेयर करें दूसरे किसी भी कंट्री के वहाँ की जो पेडागोजीज हैं, तो उसमें नॉर्मली केस स्टडीज पे फोकस किया जाता है। तो हमने अभी केस स्टडीज पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमारे नॉर्मली जो प्रोग्राम्स है, कोई एक भी अगर हमारा प्रोग्राम है तो उन प्रोग्राम्स में नॉर्मली 6 to 7 केस स्टडीज हमारी करिकुलम में नॉर्मली ऐड की जाती हैं। उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को वो एप्लीकेशन डिस्कस करने का मौका मिलता है। स्टूडेंट्स उसमें नॉर्मली डिस्कस करता है कि वो
अगर कोई एक सिनेरियो है, कोई एक इशू है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, वो बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स की इनपुट्स आ रही होती हैं। तो उन इनपुट्स की बेस पे स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिलता है, और उससे जो लर्निंग होती है वो शायद लर्निंग वो किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर में जाके वहाँ की सिचुएशन में बहुत बेहतर थ्योरेटिकल नॉलेज की वो एप्लीकेशन कर सकते होते हैं। तो ये हमारी जो पेडागोजिकल टेक्निक्स है उसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हम अपनी फैकल्टी की जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग है उस पर भी फोकस करते हैं। Azishan, you wanted to add something? जी डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस स्कूल के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह एट फास्ट वी हैव वेरी गुड टाइज विद द इंडस्ट्री। हमारा कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसके अंदर फैसलाबाद की मेजर इंडस्ट्री से लोग होते हैं जिनको हम बाय एनुअली इनवाइट करते हैं। उनके साथ वी हैव अ कप ऑफ टी एंड वी डिस्कस द करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, कि हम आपको किस तरह की मसाइल आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, किस तरह के कोर्सेज चाहिए, किस तरह की स्किल्स होने चाहिए एक बच्चे में जो जिसको आप हायर कर रहे हैं। तो हम उनकी इनपुट लेके अकॉर्डिंगली हम मोल्ड करते हैं, अपडेट करते हैं अपने सारे करिकुलम को, और उसको रेगुलरली हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो किताब 1996 में पढ़ाई जा रही थी आज भी वही पढ़ाई जा रही है। तो हम रेगुलरली अपडेट कर रहे होते हैं अपने पूरे करिकुलम को, और ये होता तभी है जब आपका कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हो। अच्छा, दूसरा हम बहुत ज़्यादा इनपुट लेते हैं चैम्बर से, हमारी चैम्बर के साथ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और उनका जो एक उसके अंदर ऑफिस है फीडमैक, उसके साथ हमारे रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती हैं। वहाँ से हमारे पास इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिनके साथ हम उनसे हमारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, वो हमें इनपुट देते हैं। एंड फ्रॉम देयर वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ इंटर्नशिप्स, इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट। तो हमारा एक पूरा फुल फ्लेज प्लेसमेंट ऑफिस है जो पूरा साल इस चीज़ पे काम कर रहा होता है कि इंडस्ट्री के साथ किस तरह लिंकेजेस और किस तरह टाइज बनाने हैं, ताकि जब हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया मार्केट में जाए तो उसे किसी तौर से भी एहसास यतीमी ना हो, वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ उसकी ऑलरेडी नेटवर्किंग डेवलप हो चुकी हो, या हमारे थ्रू हम अपनी नेटवर्किंग के थ्रू उस बच्चे को हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, और उससे ये फ़ायदा होता है कि वो लोग चूँकि हमें जान रहे होते हैं तो इस तरह से वो हमारे ग्रेजुएट्स को अच्छी जगहों पे प्लेस करते हैं। और एक पूरा जो आपको पता है डुअल रिलेशनशिप सेटअप होता है कि आप गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, हम उन लोगों की बात सुनते हैं और उनके साथ हम अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आया हुआ था कि वाई यू आर नॉट स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप का में मास्टर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप अभी जो करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है इसके अंदर तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ स्पेशलाइजेशन लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक नई डिग्री प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप पे लॉन्च करना अभी शायद इतना आसान नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया और प्रोएक्टिवली हम भी इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और हम स्टार्ट में हम कोई भी चीज़ हैफेजरली नहीं करते, हम इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो अभी से हमने ये डिसाइड किया कि हम आने वाले 1-2 सेमेस्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप पे स्पेशलाइजेशन कराएंगे। स्पेशलाइजेशन जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि 3 से 4 कोर्सेज हम अपने पूल में इंक्लूड करेंगे जो हम एमबी में पढ़ा रहे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहता है तो हम एंटरप्रेन्योरशिप से रेलेवेंट 3 से 4 कोर्सेज उनको पढ़ाएंगे, और फिर हम रिस्पांस देखते हैं बच्चों का क्या रिस्पांस है, इंडस्ट्री का क्या रिस्पांस है, आफ्टर इनकलकेटिंग दो स्किल्स टू द स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम कमिंग फ्यूचर में अपना जो है एमएस इन एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑफर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग द सेशन। सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन शायद रह भी गए हों। अगर किसी को क्वेश्चन रहता है तो वो हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा कैंपस ओपन है, स्टाफ वहाँ पे मौजूद है। अगर आप कैंपस विजिट करना चाहते हैं तो आप कैंपस विजिट भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एट 041111128 यू कैन ईमेल अस योर एडमिशन क्यूरी, यू कैन ईमेल अस एट admissions.cft@nu.edu.pk and you can even message us on our Facebook page. Now I'd like to request सर ज़ीशान कि अगर उनके पास कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हैं सेशन के लिए, जो बच्चे यहाँ पे BBA करना चाह रहे हैं, MBA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज अगर हो। जी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आ गई हैं, लेकिन टू क्लोज द होल डिस्कशन मैं यही कहूँगा कि फास्ट ने बड़ी मेहनत की है। हम लोगों ने पिछले 8 साल से फैसलाबाद के अंदर एक ऐसा बिजनेस स्कूल बनाने की जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट हो, जिसमें लेटेस्ट करिकुलम हो, टॉप नॉच फैकल्टी को हम लेके आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम इस एरिया को, इस खित्ते को सर्व कर सकें, इसमें जो बिजनेस स्कूल की कमी है उसको पूरा कर सकें। तो इस कोशिश के साथ हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मार्केट से मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, और हम इस दफ़ा भी बड़े पुरुमीद हैं कि
इंशाल्लाह बड़े अच्छे हम जो है स्टूडेंट्स का पूल इकट्ठा करेंगे और उसको हम ट्रेन करके उसको 4 साल ग्रूम करके हम मार्केट में निकालेंगे और इस एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम में अपना पार्ट प्ले करेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू यू Mughis. Thank you so much, Zishan Saab. I'd like to thank Zishan, Dr. Saif and Sir Agha Mureed for being here with us. अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी रहती है तो मैंने आपको जो नंबर्स हैं, जो ईमेल्स हैं, वो मैंने आपको बता दी. यूर मोर देन वेलकम टू विजिट अस इन आवर कैंपस. आप आ सकते हैं, आप आके कैंपस विजिट कीजिए, फैसिलिटीज़ देखिए. कोई क्यूरी अगर आपकी है तो आप वो भी देख सकते हैं. With this, I'd like to end the session for today. I hope everyone stays safe. I hope everyone stays at home, and we all pray that this pandemic ends soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.